اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے ایران کے وزیر خارجہ دوبارہ پاکستان، اور اس کے علاوہ ایران امریکہ کے ٹرمپ پہ حملہ آور کون تھا، اس پہ بات کروں گا، اور کس ملک کا شہری تھا، کہاں ملازمت کرتا تھا، پوری تفصیل بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ ایران کے لیے پاکستان کا بہت بڑا تحفہ، وہاں قحط کی صورتحال بنی ہوئی ہے، یوتھ کے جو پوسٹیں لگا رہے ہیں نا، اللہ ان کو یا تو ہدایت دے یا ان کی نسلوں سمیت ان کو تباہ و برباد کرے، آمین۔ پہلے بات کیا ہدایت کی، کیونکہ پہلے دعا کرنی چاہیے ہدایت کی۔ اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو پھر اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ یہ ہمیشہ ملک کے خلاف بولتے ہیں، ملک کے خلاف بھونکتے ہیں، حافظ صاحب کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور طاہر اشرفی صاحب کے خلاف انہوں نے انگلینڈ میں جو کچھ کیا ہے، بھائی وہ ایک آزاد خیال بندہ ہے۔ اب ہر بندے کی مرضی ہے، وہ پہلے عمران کے ساتھ تھا، اب نہیں ہے، کوئی پابندی تو نہیں ہے، یا اس کا غلام تو نہیں ہے وہ، تم لوگ تو اس کے غلام ہو، وہ نہیں ہے، یا ہم نہیں ہیں۔ میں بھی پہلے عمران کے ساتھ تھا جب وہ بنا رہا تھا شوکت خانم، میں نے بھی بے حساب ساتھ دیا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ یہ غدار وطن ہے میں پیچھے ہٹ گیا۔ ہر بندے کا حق ہوتا ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ بات کروں گا کہ پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر میں وہ اشر ہوا ہے کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں بجلی کس وجہ سے لوڈ شیڈنگ 24 گھنٹوں کی ہو رہی ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اور گوبر پہ اور سولر پہ کتنا ٹیکس لگ رہا ہے، اس پہ بات کروں گا۔ آج کا ولاگ انتہائی دلچسپ ہوگا، غور سے دیکھیے گا، سنیے گا، اور ملک کے حالات سے باخبر رہیے گا۔ سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ ہیں، اگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، اور میرے استاد محترم ہیں عارف نظامی صاحب، یہ ان کا ہی لگایا ہوا پودا ہے جو اتنا سا سچ ہو تو اتنا ہی بتاتا ہے، جھوٹ شامل کر کے اتنا نہیں کرتا ہے۔ عارف نظامی صاحب نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے، اب نوائے وقت اخبار تو نہیں رہا ہے، لیکن اب اللہ نے مجھے، اس کے بعد میں آیا پرنٹ میڈیا سے، میں الیکٹرانک میڈیا میں آیا، وہاں میں اس لیے نہیں چل سکا کہ وہاں اتنا لمبا سا ایک کاغذ لکھا ہوا دیتے تھے کہ بھائی حاجی صاحب اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ میں اس کو جب غور سے پڑھتا دیکھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا بھائی اب 76 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، اللہ نے عزت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، ہر کچھ دیا، اچھی نیک اور فرما بردار اولاد بھی دی ہے، تو میں کیوں نہ شکرہ کر کے آخرت خراب کروں اس پیسے کے پیچھے لگ کے۔ میں نے انکار کر دیا۔ بعد میں پھر انہوں نے بلانا ہی مجھے چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے کام کا بندہ نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔
फिर मुझे अल्लाह ने अपना चैनल दे दिया है। मैं आप लोगों से अल्फन वादा करता हूं कि इसमें अगर इतना सच होगा तो इतना ही बताऊंगा, और किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जो मुल्क के मफाद में काम करेगा उसको अप्रिशिएट करूंगा, जो मुल्क के खिलाफ काम करेगा खुल के उसकी मुखालफत करूंगा, चाहे किसी भी बड़े से बड़े ओहदे पे भी हो ना। मैं नहीं डरता हूं, वैसे भी बोनस पे चल रहा हूं, 76 साल का हो गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जो रात कब्र में है वो बाहर तो नहीं हो सकती है। तो मेरे जैसे लाखों इस मुल्क पे कुर्बान, ये मुल्क है तो हम सब भी हैं, मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर मुल्क है तो कई इमरान आएंगे, अभी कई नवाज शरीफ आएंगे, कई शहबाज शरीफ आएंगे, कई मरियम नवाज आएंगी, कई आसफ जरदारी आएंगे, कई बिलावल भुट्टो आएंगे, कई मौलाना फजल रहमान जैसे आएंगे। तो कोशिश करें कि मुल्क का साथ दें, अपने मुल्क का साथ दें, मुल्क के वफादार बने, इमरान के वफादार ना बने, मुल्क का साथ दें, मुल्क के वफादार बने। वरना फिर हाँ, एक बात बता दूं आप लोगों को कि आफत सैयद आसम मुनीर साहब को जो यूथ के गालियां देते हैं ना, वो मैं लिख के देने को तैयार हूं। मेरे पास हदीस की किताबों में से मुस्लिम में भी है, बुखारी में भी है, तिरमिजी में भी है, हदीसें मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मेरी औलाद फातिमा से चलेगी, फातिमा की औलाद ही मेरी औलाद होगी, और जिसने फातिमा की औलाद को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी वो इस्लाम से खारिज हो गया, काफर हो गया। ये तकलीफ देने पे इतनी, और गाली गलौज का आप सोच लेंगे आप लोग मुकम्मल तौर पे काफर हो चुके हैं, इस्लाम से निकल चुके हैं। दिल से तौबा करें, दोबारा कलमा पढ़ें, ईमान लाएं। अगर शादीशुदा है तो दोबारा से निकाह भी करें, और फिर इस ऐत पे कायम रहें क़यामत तक कि किसी सैयदजादे को गाली नहीं देनी है। क्योंकि जो अली और फातिमा की, आफत सैयद आसम मुनीर अली और फातिमा की औलाद है, और शाह शम्स तब्रेज की नस्ल है, जिनको अल्लाह ने इतनी पावर दी हुई थी कि मुल्तान में उन्होंने सूरज को नीचे बुला लिया था। उनके पास खुद तो कोई इख्तियार नहीं था, ना वो बुला सकते थे, ये अल्लाह ने ही उनको इख्तियार दिया था ना। तो अल्लाह ने आप सबको भी बेख्तियार नहीं रखा है, इनको भी बेहिसाब ताकतें दी हुई हैं। तभी तो इंडिया जैसी फौज 1,36,000 कहा, और ना सॉरी 1,36,00,000 कहा, और कहा 7 लाख, 2 घंटे भी टिक नहीं पाए थे। तो इससे आप अंदाजा कर लेना। अब आप आ जाए जनाब, इराक के वज़ीर ख़ारजा दोबारा पाकिस्तान आ गए हैं, और यहाँ से वो मस्कत गए थे हमारे आर्मी चीफ के जहाज़ पे। हमने अपना जहाज़ दिया ताकि रास्ते में इसराइल या कोई भी मुल्क उस पर हमला करने का सोचे भी ना। और अब यहाँ आया है, उनका जहाज़ यहाँ खड़ा है, अब वो यहाँ से अपने जहाज़ में फिर वापस जाएंगे और दोबारा मुलाकात करके जाएंगे रूस, रशिया जाएंगे। वहाँ से वापसी पे फिर पाकिस्तान। यूथी तो कुत्ते की तरह भौंक रहे होते हैं ना, इनको अल्लाह ने जलील होना इनका लिख दिया हुआ है। ये हर कदम पे जलील होते रहेंगे इंशाअल्लाह क़यामत तक। काफर तो हो चुके हुए हैं, मुसलमान तो रहे नहीं, तो काफरों के नसीब में जिल्लत ही होती है। और इसमें 90% पीटीआई में कादियानी है। आप लोगों को सच हकीकत बता रहा हूँ, वरना गूगल सर्च कर ले, उस पर लिखे इमरान अहमद नियाजी, उसकी सारी वीडियोस खुल जाएंगी। कादियानियों के साथ मुलाकातें कर रहा है, उनके साथ बैठा हुआ है, खुद भी कादियानी है। इसका सक्का नाना 13वां खलीफा था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का। यूथ क्यों, गौर से सुनो। और अब इमरान की बेटी ने अपने यहूदी मामू के यहूदी बेटे के साथ शादी कर ली है, और इमरान के बड़े बेटे का रिश्ता तय हुआ है नेतन्याहू जो इस्राएली वज़ीर आज़म है उसकी पोती के साथ।
कुरान कह रहा है कि यहूद और नसारा के करीब भी मत जाओ वरना तुम उन जैसे हो जाओगे। और यहाँ नजदीक जाना या बात करना मना किया गया है। यहाँ पे उनके साथ रिश्तेदारियां की जा रही हैं। इमरान भी उनका यहूदियों का ही दामाद है ना। ये गोल्डस्मिथ कौन था? सबसे बड़ा यहूदी, खरबपति यहूदी, और सबसे बड़ा इस्लाम का और मुसलमानों का दुश्मन। वो तो जन्म वासल हो चुका है, उसकी बीवी भी जन्म वासल हो चुकी है। अब उसका बेटा है, इकलौता बेटा, एक ही बेटा है जो इमरान का साला है। अब उस साले के बेटे को इमरान ने अपनी बेटी दे दी है, शादी हो गई है। ये किसी ने नहीं बताया। मेरे चैनल पे जाके देख ले, मैंने 2 महीने पहले शादी हुई थी, मैंने 2 महीने पहले आप लोगों को व्लॉग में बता दिया था कि ये शादी हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया को तो उन्होंने खरीदा हुआ है, ये तो नहीं बताएंगे। तो अब ईरान के पे देखें, ईरान पे इस कदर खराब सूरत बनी हुई है। यूथियों को क्या पता, इनको अपनी माँ का, बहनों का नहीं पता होता है कि वो क्या क्या कारनामे खिला रही हैं, तो इनको ईरान का क्या पता। ईरान में इस वक्त सूरत ये बनी हुई है कि वहाँ पानी नहीं मिल रहा है, पीने वाला साफ पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ ग़िज़ाई अजनास नहीं मिल रही हैं, उनकी किल्लत हो गई है। उसके लिए पाकिस्तान ने क्या किया है कि एक कानून मंजूर किया है 24 घंटों के अंदर अंदर, 2 घंटों के अंदर अंदर एक कानून बना दिया, जिसके तहत पाकिस्तान किसी भी मुल्क को बगैर किसी टैक्स के इजाज़त दे सकता है। ईरान ख़ास तौर पे ईरान का बताया गया है कि ईरान को 3 बॉर्डर दे दिए गए हैं। कराची का बॉर्डर, ग्वादर का, कराची की 3 बंदरगाहें दे दी गई हैं। कराची की बंदरगाह, ग्वादर की बंदरगाह और ताफ्तान की बंदरगाह, तीनों में से वो जिस पे दिल चाहे तजारत उसके थ्रू कर सकता है। वैसे तो वहाँ पे नाकाबंदी हुई है, वो कोई चीज़ वहाँ तक नहीं जा सकती है। जो चाइना से सामान जा रहा था उसको भी उन्होंने रोक लिया रास्ते में। अब पाकिस्तान के थ्रू ये सारी इमदाद जाएगी। अब यूथियों तसल्ली है, आफत साहब के जहाज में इतना एतमाद करते हैं ना वो ईरान के लोग आफत सैयद आसम मुनीर पे, कि आफत साहब का जहाज में वो पुरसुकून अंदाज में गया है मस्कत का दौरा कंप्लीट करके वापस आया है। और अब अपने जहाज में, उसका जहाज नूर खान एयरबेस पे खड़ा है। अब आज वो वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा और इसी तरह आर्मी चीफ से मुलाकात करेगा और उसके बाद रूस चला जाएगा। वापसी पे फिर आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा और फिर ईरान जाएगा। पाकिस्तान के सदर आसफ अली जरदारी साहब चाइना के दौरे पे हैं, वो चाइना के साथ मुआहदे कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं। सी पैक पे 24 घंटे काम हो रहा है और मुल्क तरक्की कर रहा है, तरक्की की तरफ गामजन है। ये कुत्ते हैं, ये पीटीआई के कुत्ते हैं, इनका नसीब में ही अल्लाह ने भौंकना लिख दिया हुआ, इन पे तवज्जो न दिया करें। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, इनके अल्लाह ने जिल्लत लिख दी हुई है, को पूरी दुनिया मिलके भी इनको इज्जत नहीं दे सकती है। जैसे नवाज शरीफ के नसीब में अल्लाह ने इज्जत लिखी हुई थी ना, तो यूथ के क्या पूरी दुनिया भी मिलके उसको बेइज्जत नहीं कर सकी थी। आज भी देख लें, उसकी इज्जत पहले से डबल है ना। किसी ओहदे पे होते हुए भी पूरी दुनिया के लीडर उससे मशवरे ले रहे हैं। और उसका भाई वज़ीर आज़म है, उसकी बेटी सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला है। तुम लोगों के पास क्या है? कुत्ते की तरह तुम्हारा लीडर दुम से पकड़ के ना जेल में डाल दिया गया है। वहां दज्जाल बन गया है, एक आंख वाला काना दज्जाल। उसकी बीवी भी दज्जाल बनने वाली है, उसकी भी एक आंख इंशाअल्लाह जाया होने वाली है। ये अल्लाह की तरफ से है। कोई किसी को बीमार नहीं कर सकता है, कोई किसी को मार नहीं सकता है। जब तक मेरा रब चाहे कोई भी एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इस पे हमारा ईमान है। और अब आप देखें, पाकिस्तान ने ये रास्ते खोल दिए हैं। अब इंशाअल्लाह ईरान तजारत करेगा पाकिस्तान के थ्रू। ये बहुत बड़ा तोहफा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने उनको कहा कि गंदम चाहिए तब भी बताएं, पीने का पानी की, मिनरल वाटर की बोतलें
हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से, टनों के हिसाब से गई हैं वहाँ पे। और इसके अलावा जो है ना, अब उस पे भी काम शुरू हो गया है। जो पाइपलाइन बिछाई गई थी बलूचिस्तान तक, उसको अब गैस पाइपलाइन को आगे लाया जा रहा है। इंशाल्लाह हम चाइना से, ईरान से गैस भी लेंगे और तेल भी लेंगे। अमेरिका ने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। यहाँ पे अमेरिका का गुलाम जेल में बंद है। अब कोई अमेरिका का गुलाम यहाँ पे नहीं बैठा हुआ, या इसराइल का एजेंट नहीं बैठा हुआ है। ये अली और फातिमा की औलाद है, शाह शम्स तबरेज की नस्ल है। इसका कोई एक बाल भी बीका नहीं कर सकता है। तो अब आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं कि हंगरी के सदर जो अब बना है ना, पहले वाला तो पिट्ठू था। वो तो जो ईरान के खिलाफ बंदा जाता था उसको वीटो कर देता था करारदाद को। अब जो बना है ना, हर सहूलत वो ईरान को देता था। अब जो बना है वो ईरान के इतने खिलाफ है कि ना, सॉरी, इसराइल के इतने खिलाफ है कि उसने कहा कि अगर नेतन्याहू हंगरी में आया तो उसके वारंट जारी हुए आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से, हम उसको गिरफ्तार करके आलमी अदालत इंसाफ का में पेश करके कानून को तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बहुत बड़ी बात होती है। तो अब देखें कि किस तरीके से अब आज़ाद कश्मीर में एक जलसा हो रहा था, उसमें सुहेल अफरीदी साहब ने खिताब करना था। तकरीबन 500 के करीब कुर्सियां लगाई गई। यकीन जानिए, मैं हल्फन कह रहा हूं, किसी यूथियों को एतराज हो तो जाके कश्मीर के किसी बंदे से भी पूछ सकता है। 200 बंदा भी नहीं गया है। वो 100-150 बंदा तो उसके अपने स्क्वाड में शामिल था। वही 100-150 बंदा उसके जलसे में उन्हीं से खिताब करके, खाली कुर्सियों से खिताब करके वापस आ गया है, सूबे के वसाइल पे कई खरब रुपया लगा के। ये सैर सपाटे ही कर रहे हैं। सूबे से इनको कोई गर्ज नहीं है, ना सूबे के अवाम से कोई गर्ज है। इंशाअल्लाह इनको इस मरतबा वहां से भी इबरतनाक जिल्लत होगी और इनके नसीब में जिल्लत लिख दी गई है। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। इंशाअल्लाह ये क़यामत तक जलील होते रहेंगे और मुल्क तरक्की करता रहेगा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ईरान का साथ देगा। पाकिस्तान के ने खुल के कह दिया अमेरिका को भी, सबको भी, कि भाई हम तजारत करेंगे ईरान के साथ और खुल के उससे पेट्रोल भी लेंगे, गैस भी लेंगे। और इसके अलावा तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान ने दुबई का तमाम पैसा वापस कर दिया जो इमरान यहूदी ने लिया था। उसका कर्जा अब शहबाज शरीफ ने वापस किया है। अब वो मिन्नतें कर रहा है पाकिस्तान की कि जनाब माफ कर दें, गलती हो गई है, इंसान हूँ, गलती का पुतला हूँ। आप ये 4.5 अरब भी रखें, 4.5 अरब डॉलर भी रखें, वापस ले लें। और इसके अलावा मैं 10 अरब और देने को तैयार हूँ। ग्वादर में मैं इन्वेस्टमेंट भी करने को तैयार हूँ। किसी तरीके से आप मुझे अपने इस दिफाई निज़ाम में शामिल कर लें, मेरी भी हिफाजत करें। पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि इस पे एतबार नहीं है। ये काफिरों का दोस्त है, मुसलमानों का दुश्मन है, ये जो दुबई है। तो अब देखें कि अल्लाह की कैसे करम नवाजी हुई है कि चीन का कर्जा, चीन के प्राइवेट बैंकों से जो लिया गया कर्जा था, उस पे हम 600 करोड़ डॉलर दे रहे थे हम सालाना सूद इसको, दुबई को। और जो चाइना के बैंक जिनसे इमरान नियाजी ने अपने दौर में प्राइवेट बैंकों से डबल ट्रिपल सूद पे कर्जे ली गई थे, इसने चीन के प्राइवेट बैंकों से, वो पाकिस्तान ने तमाम के तमाम कर्जे वापस कर दिए हैं। अभी यूथियों अगर अपने असल बाप के हो तो गूगल पे जाओ और सर्च करो, तमाम कर्जे वापस कर दिए गए हैं प्राइवेट बैंकों के। वो सूद जो हम दे रहे थे ना, वो बचत हो गई है। मुल्क के मफाद में वो पैसा अब इंशाल्लाह लगेगा। और अगला महीना जो मई का महीना है, इसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है
کہ ان کو اگلے مہینے مئی کے مہینے میں 19 چھٹیاں آ رہی ہیں سرکاری، 19 چھٹیاں وہ گزاریں گے اور ٹوٹل 11 دن کام ہوگا۔ اور اب اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرمائے، آفت سید آصم منیر اور ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرمائے، شریف فیملی کے تمام افراد کی حفاظت فرمائے، آصف زرداری اور جتنے بھی حکومت میں شامل ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے دشمنوں کو اللہ تباہ و برباد کرے، اندر کے غداروں کو اللہ تباہ و برباد کرے، بیرونی دشمنوں کو اللہ تباہ و برباد کرے، ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔